नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की एक बड़ी खबर। विदेश की धरती से एक बार फिर से राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिससे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। लंदन से राहुल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी समेत आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया में लोकतंत्र पर बर्बर हमले किए जा रहे हैं, संस्थाएं अब न्यूट्रल नहीं है। आरएसएस और बीजेपी ने इंडिया की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष को बीजेपी के साथ साथ संस्थाओं से भी लड़ना पड़ रहा है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बहाने भी हमला बोला और कहा कि बीबीसी पर एक्शन लेकर बीजेपी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है कि जनता चुप रहे। Of having this discussion and resolving it. We are also, it's important to understand, and particularly for the foreigners here, that the opposition in India is no longer fighting a political party. फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। This is something that you say BJP, well that's not who we are fighting, right? We are fighting the institutional structure of India now, right? We are fighting the BJP and the RSS, which has captured almost all India's institutions, right? So the idea of a level playing field doesn't exist, right? In the United Kingdom, two parties fight each other, and the institutions are neutral. That's gone in India, right? Institutions are not neutral. We are fighting the institutions and the RSS and the BJP. And every opposition person understands this very clearly. And most Indian people also get it. विदेशी धरती से देश के अपमान के आरोपों पर राहुल गांधी ने सफाई भी दी है। राहुल ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा वो भारत का अपमान नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विदेश में देश के अपमान का काम प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। वो जब भी विदेश जाते हैं पिछले 60-70 साल की सरकारों पर आरोप लगाकर देश की छवि को बिगाड़ते हैं। There is nothing defaming India in my Cambridge lecture. Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, you know, there's a lost decade of 10 years, there's unlimited corruption in India. I remember him saying them abroad. These were not things he said in India, these were things he said abroad, right? So, I have never defamed my country, I'm not interested in it, I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say, you know, but the fact of the matter is the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. अब लंदन के अपने प्रोग्राम में राहुल गांधी ने चीन विवाद पर भी पीएम मोदी पर बड़े आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा जमा लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं हुआ है। राहुल ने कहा कि इससे हमारी पोजीशन खराब हुई है और बातचीत करने पर चीन कहता है कि आपके प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। I mean, we've got 2000 square kilometers of our territory that is in the hands of the PLA. So, and the Prime Minister himself has stated that nobody has entered India, not a single inch of land has been taken, and this has destroyed our negotiation position, right? Because our negotiators are being asked, what's the fuss about? Your Prime Minister says that no land has been taken. So that's one aspect of it. The other aspect of it, which I keep saying, is India needs to be very, very careful with what the Chinese are doing at the border. The Chinese are acting in a hostile manner, in an aggressive manner, and we need to be very, very careful. And I've been stating that again and again. I don't think the penny has dropped in the government. And I think there is a risk, as you said. लंदन से राहुल गांधी ने अडानी के मामले पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया है। राहुल ने कहा कि मोदी से दोस्ती का अडानी को फायदा मिल रहा है, वो देश की हर इंडस्ट्री पर हावी हो रहे हैं, बिना अनुभव उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। मोदी से दोस्ती की वजह से अडानी 3 साल के अंदर दुनिया में 609 नंबर से 2 नंबर पर पहुंच गए थे। And I can see that Mr. Adani has gone from being the 609th richest man
to the second richest man in a matter of 3 years. I can see that he's rewarded across the board. I can see he's allowed to dominate industries in every industry in the country, and that, you know, we don't need Mr. George Soros to tell us that. We can clearly see it's happening, and he's got a very good relationship with the Prime Minister. Mr. Adani seems to win every auction he takes part in. He doesn't need any experience to enter business. He gets the 6 most profitable airports in the country, has never worked in the airport business. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के बीच राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की एकता पर भी बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच बातचीत जारी है। पूरा विपक्ष आरएसएस और बीजेपी को हराना चाहता है। विपक्ष में कई मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है। अब सबकी कोशिश यही है कि बीजेपी को हराया जाए। There are conversations going on between the opposition parties. I am aware of many of them. And I think the basic idea that the RSS and the BJP needs to be fought and needs to be defeated is deeply entrenched in the minds of the opposition. There's no question of that. There are tactical issues that require discussion. Some states they're very simple. Other states they're slightly more complicated. But the opposition is very much capable. राहुल गांधी के बयान पर पलटवार होना तय था। बीजेपी ने जवाबी हमला किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा विदेश में भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति विरोध में देश का विरोध कर देते हैं। दुनिया भारत की तारीफ कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी भारत को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर नहीं, परिवार तंत्र पर खतरा है। देखिए, एक तरफ तो भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखा जा रहा है, परंतु किस प्रकार से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जाए और भारत की छवि को बिगाड़ा जाए, इसके लिए कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्हें जब परिवार तंत्र पर खतरा मंडराता है तो उन्हें लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। देश को खामोश तो तब किया गया था जब इमरजेंसी लागू की गई थी। किशोर कुमार से लेकर किस प्रकार से जिन्होंने भी इमरजेंसी का विरोध किया गया था, उस समय पर लोगों के द्वारा उनको खामोश कराने का काम मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार से किया गया था, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। परंतु आज सवाल ये बनता है कि जब ब्रिटेन के सांसद या इटली की प्रधानमंत्री भी खड़े होकर भारत की प्रशंसा करती है, तो भारत का एक सांसद ब्रिटेन की भूमि पर जाकर भारत की बदनामी के लिए भारत के संस्थाओं पर सवाल उठाना, भारत पर सवाल उठाना और एक व्यक्ति विरोध में बार बार देश विरोध में उतर आना, इसका फिर से एक बार परिचय देते हैं। इससे पहले भी हैम्बर्ग में जाकर भारतीय संस्कृति पर ही सवाल उठा देना, विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप की मांग करना, ये पुरानी आदत बन चुकी है। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने भी पलटवार किया है। रिजिजू ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग इस बात को समझे कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का कायाकल्प हो रहा है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि टुकड़े टुकड़े गैंग इंडिया पर अटैक करता है और अब यह गैंग डिफेंस न्यायपालिका पर भी अटैक कर रहा है। तो आपको बता दें कि एक के बाद एक बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने साफ लिखा है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तो एक्टिव है ही, लेकिन साथ ही वो देश के जो संस्थान है, चाहे वो डिफेंस हो या फिर हमारे कोर्ट्स हो, उसे भी निशाना बना रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने विवादित बयान दे दिया। बीजेपी सांसद हरनाथ ने कहा कि राहुल गांधी का रक्त शुद्ध भारत का रक्त नहीं है। राहुल गांधी देश के शत्रु हैं। देश को जितना खतरा चीन, पाकिस्तान और खालिस्तान से है, उतना ही खतरा राहुल गांधी से। बीजेपी सांसद हरनाथ ने कहा कि राहुल की आत्मा चीन, पाकिस्तान में रहती है और राहुल गांधी जब बोलते हैं तो देश के दुश्मन खुश होते हैं। आचार्य चाणक्य ने जो ये कहा था कि विदेशी रक्त जो है कभी देशभक्त नहीं हो सकता, उनके अंदर विदेश मिश्रित रक्त है। उनका रक्त जो है शुद्ध भारत का रक्त नहीं है। तो वो तो देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खेल रहे हैं। राहुल गांधी देश के शत्रु हैं, देश के विरोधी हैं। जितना खतरा चीन से, पाकिस्तान से, बीबीसी से, खालिस्तानियों से भारत को खतरा है, उतना ही खतरा क्या नाम है राहुल गांधी से देश को सचेत हो जाना चाहिए। भारत की सेना एयर स्ट्राइक करती है तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं।
बीबीसी की भाषा बोलते हैं, अन्य जो देश के दुश्मन हैं उनकी भाषा बोलते हैं। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो देश के जितने भी देश के अंदर बैठे हुए शत्रु, बाहर बैठे हुए शत्रु, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। राहुल गांधी का शरीर यहाँ पर है, आत्मा उनकी चीन में है, पाकिस्तान में है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। विदेश की धरती से 3 दिन के अंदर राहुल का यह दूसरा हमला है। राहुल ने पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला किया था। आरोप लगाया था कि उनकी जासूसी कराई जा रही है। विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके आपराधिक मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं और पत्रकारों के एक प्रोग्राम में यह कह दिया अब उन्होंने कि देश में लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में क्या कहा था। Had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।